لاہور کوئی مذاق نہیں ہے. صرف یہ کہہ دینا جن نے لاہور نہیں تکیا جمیا نہیں, اور تسی جمے ہو, تسی لاہور دے متعلق کچھ جانتے ہی نہیں ہو. اپنی قومیت کو پہچاننے کے لیے آپ اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس قسم کے جو سمبولک قسم کے جیسچر ہیں یہ آپ ہی کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. مگر اس پورے اسٹوڈیو کو بنانے والے, سجانے والے, یہاں فلمیں بنانے والے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا R.L. شوری. ہم لوگوں کو یہ گیت اور مینا کماری لازم و ملزوم نظر آتے ہیں, اور جو ہمارے ہاں خیال کی گائکی ہے وہ انہی کی ایجاد ہے. اس کے علاوہ بہت سارے راگ جن میں ایمن بھی شامل ہے ان کی ایجاد ہے, طبلہ ان کی ایجاد ہے. خواتین حضرات, لاؤڈ سپیکر کی ایک نئی ایپیسوڈ ہے اور ڈاکٹر عمر عادل اسے آپ کے سامنے لے کر حاضر ہے. آج میں آپ کو سناؤں گا کہانی ایک فلمی گیت کی, آپ کے ایک بے انتہا ہر دل عزیز اور پسندیدہ فلمی گیت کی کہانی. آپ کہیں گے ڈاکٹر عمر عادل کا دماغ خراب ہو گیا. آپ میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا وہ سافٹ ویئر ہو چکا ہے اپ ڈیٹ. تو اڈا نہیں نہ ہویا تو بول کے وکھاؤ, مینو تانے نہ دیو ایڈے تسی لتری والے. باہر طور میرا سافٹ ویئر کوئی اپ ڈیٹ نہیں کر سکتا سوائے میرے پروردگار کے, اور کسی کو ضرورت بھی نہیں ہے. میرا سافٹ ویئر بڑا جدید ہے. آپ میں سے جس کو مجھ پہ گلا ہے وہ اس طرح کیجئے کہ اپنا فون پکڑیں, مائک لگائیں اور لگے رہو, جنوں مرضی جو کچھ مرضی کہنا کہو. تے پھر میں ویننا کہ تواڈے وچ ہمت ہے وے سچ بولن دی, تواڈے وچ ہمت ہے وے کچھ کہن دی, تنقید کرن دی. کسے اتنے تنقید کرنا تو بہت بہتر ہے کہ تسی پہلے وہ کام کر کے وکھاؤ جہاں تسی چاہتے ہو کہ دوجے کرن, لگ پتہ جائے تانوں. باہر طور میں دوبارہ اپنی ٹون کو بدلتا ہوں کیونکہ میرا سافٹ ویئر جب میں چاہوں جس طرف چاہوں اس ٹیمپو کی طرف لے جا سکتا ہوں. آج میں نے سنانی ہے آپ کو ایک فلمی گیت کی کہانی. آپ لوگ یہ کہیں گے کہ فلمی ہیروئن کی کہانی ہوتی ہے, فلم کی کہانی ہوتی ہے, ہیرو کی کہانی ہوتی ہے, یہ گیت کی کہانی کیا ہوا؟ آئیے سنتے ہیں گیت کی کہانی. خواتین حضرات, ایک گیت ہے جو بے انتہا زیادہ برسوں سے, تقریباً کئی ہی برسوں سے ہم لوگ سن رہے ہیں, اس پہ سر دھن رہے ہیں. اب چونکہ اس گیت کو منظر عام پہ آئے ہوئے خاص طور پہ میس میڈیا میں تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, تو میں نے سوچا کہ اس کی 100ویں سالگرہ بھی منائی جائے اور اس کا ذکر بھی کیا جائے. یہ گیت ہے جو آپ نے سنا ہوا ہے, فلم پاکیزہ کا گیت ہے, انہی لوگوں نے لے لینا دوپٹہ مورا. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ کئی لوگ اس مکھڑے کا مطلب نہیں سمجھتے. یعنی کہ جو خاتون یہ گیت گا رہی ہیں وہ اپنے گرد جمع ہوئے مجمع کو, تماشبینوں کو یا گیت کو دیکھنے والے ناظرین و سامعین کو یہ کہہ رہی ہیں انہی لوگوں نے لے لینا دوپٹہ میرا, کہ انہوں نے دوپٹہ جو میری حیا ہے میرے سر سے چھین لیا ہے. اب آپ اسے ایک ٹونٹ سمجھیے, ایک طنز سمجھیے یا ایک ادائے دل برانہ سمجھیے, یہ آپ کے اپنے مذاق پہ اور ذوق پہ ہے. باہر طور اس گیت کی کہانی میں اس لیے آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ میں جب سوشل میڈیا دیکھتا ہوں تو بہت سارے لوگ ذکر کرتے ہیں کہ یہ گیت پہلے اس فلم میں آیا اور اس فلم میں آیا اور اب اس فلم میں آیا, مگر کوئی بھی اس کی اصل کو مکمل طریقے سے نہیں بتاتا. آج کے ایپیسوڈ اس کے نظر ہے. خواتین حضرات, جہاں تک اس گیت کا تعلق ہے, یہ برصغیر پاک و ہند کا ایک فوک گیت ہے, انہی لوگوں نے لے لینا دوپٹہ مورا. اور یہ گیت بنیادی طور پہ ایک ایسا گیت ہے جو کہ میلوں ٹھیلوں میں, کوچہ و بازار میں اور گلیوں محلوں کے اندر کوئی بھی اسٹریٹ پرفارمر گاتی یا گاتا تھا, اور اس کے گرد اس گیت کو دیکھنے والے, اس پرفارمر کا رقص دیکھنے والے, اس کی ادائیں دیکھنے والے پھر اس پہ پیسے پھینکتے تھے اور اس طرح روزی روٹی کا بندوبست ہو جاتا تھا. بہت سے لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ گیت لکھا ہے طوطی شکر بکال جناب حضرت امیر خسرو نے, جو کہ آپ جانتے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں, صوفی ہیں اور موسیقی کے بابا آدم تو نہ صحیح مگر ایک بہت بڑے موسیقار, موسیقی دان ہیں, اور جو ہمارے ہاں خیال کی گائکی ہے وہ انہی کی ایجاد ہے. اس کے علاوہ بہت سارے راگ جن میں ایمن بھی شامل ہے ان کی ایجاد ہے, طبلہ ان کی ایجاد ہے, ستار ان کی ایجاد ہے, اور اس کے علاوہ کتنی ہی اصناف سخن ہیں, انمل, کہہ مکرنیاں, گیت, پہیلیاں وغیرہ وغیرہ, سب انہی کی دان ہے, انہی کا فیضان ہے. خواتین حضرات, جہاں تک حضرت امیر خسرو کا تعلق ہے, میرے خیال میں وہ واحد بزرگ مرد ہے کہ جس نے برِ صغیر کی عورت کے جذبات کو گیتوں کی شکل میں اظہار کی ایک شکل دے دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچی انتظار کر رہی ہے اپنے بھیا کہ اماں میرے بابا کو بھیجو ری کہ ساون آیا. بیٹی تیرا بابا تو بڈھا ری کے ساون آیا.
हरे हरे बांस कटा मोरे अंगना, और बहनों को दिए महल तो महले मोहे दियो रे परदेस, वगैरह वगैरह। कितने ही ऐसे गीत हैं कि जो शादी ब्याह के गीत हैं और बरसों से बल्कि सदियों से गाए जा रहे हैं, और वो सब गीत ऐसे हैं कि जो औरत की आवाज़ उसके दिल के आईनादार हैं, मगर ये सब तख्लीक एक मर्द की है। सेंसिटिव मर्द सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी जिन्स के लिए नहीं, बल्कि मुखालिफ जिन्स के लिए भी बड़े कारनामे करता है। ख़वातीन हज़रात, तो अगर इस गीत को हम देखें कि पहली दफ़ा इसे रिकॉर्ड कैसे किया गया, तो आइए चलते हैं 1921 की तरफ। 1921 में हमारे पास कलकत्ता का इलाका है डमडम, जहाँ पे ग्रामोफोन कंपनी की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, और वहाँ पे मकामी गुलकारों की आवाज़ में गीत रिकॉर्ड करके प्रेस किए जाते थे वैक्स रिकॉर्ड्स के अंदर, मोमी रिकॉर्डों के अंदर। उसके बाद ये मोमी रिकॉर्ड जर्मनी के शहर हैनोवर जाते थे, जहां पे इनकी शलक की कॉपियां बनाई जाती थी, वो जो काला मसाला नहीं होता उसकी। और ये जो कंपनी ये बनाती थी उसका नाम था हिज मास्टर्स वॉइस, HMV। अगर आपके पुराने कोई रिकॉर्ड पड़े हुए आपके दादा या दादी के ज़माने के, तो आप देखिए कि उस पर कुत्ता है जिसका नाम मैं आपको बताऊं क्या है, निपर, NIPPER, जो कि एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड के भोंपू के सामने बैठा देख रहा है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही। इसकी कहानी में फिर किसी दिन आपको सुनाऊंगा, बड़ी दिलचस्प कहानी है कि निपर कौन था, कहाँ से आया और क्यों अमर हो गया। ख़वातीन हज़रात, तो HMV ने आज से बरसों पहले, तकरीबन 104 साल पहले, एक बहुत मशहूर मुगन्निया थी, बल्कि तवाइफ थी, कहने में कोई हर्ज नहीं है। शी वॉज अ कोर्टिजान फ्रॉम लखनऊ, जिनका नाम था अख्तर जान, या अख्तरी जान भी उन्हें कहा जाता था। उनको बुला के उनकी आवाज़ में इन्हीं लोगों ने ले लीना का पहला रिकॉर्ड भरवाया, जो किसी फिल्म के लिए नहीं था बल्कि HMV की प्रोडक्शन के लिए था। अब इस अख्तरी जान को काइंडली अख्तरी बाई फैजाबादी या बेगम अख्तर से कंफ्यूज ना कीजिए। बेगम अख्तर इसके बाद मशहूर हुई हैं, उनके रिकॉर्ड इसके बाद आए हैं, और वो भी एक गज़बनाक किस्म की सेमी क्लासिकल और गज़ल की सिंगर थी। अगर आप इसका रिकॉर्ड देखें, जो कि बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि मेरी कलेक्शन में मौजूद है, तो मैं आपको ये बताऊं कि इस पे अख्तरी जान का नाम भी है, और उसके अलावा लिखा है कि ये दादरा है। मौसीकार का नाम नहीं है, क्योंकि इसकी धुन बुनियादी तौर पे एक फोक ट्यून थी और उसी में ये गाया गया। आखिर में एक बड़ी मजे की बात है कि जब भी कोई गीत ऐसे रिकॉर्डों पे खत्म होता है तो गुलकारा बढ़ के एकदम से कहती है, माई नेम इज अख्तरी जान ऑफ लखनऊ। वो इसलिए कि जो हैनोवर में बैठ के जर्मन टेक्नीशियन इसका रिकॉर्ड बनाएंगे वो सही लेबल लगाएं, क्योंकि उनको तो बिल्कुल नहीं पता कि क्या गाया जा रहा है और कौन गा रही है, ना उनको वाकफियत है। तो हर गुलकारा या गुलकार अपना नाम बताता था, और इस सिलसिले में जिस गुलकारा का नाम अमर है उनका नाम है गौहर जान कलकत्ते वाली। वो आखिर में कहती थी, माय नेम इज गौहर जान कलकत्ते वाली। और वैसे भी इनकी कहानी भी सुनाऊंगा। ये अम्मा हव्वा हैं, रिकॉर्डेड म्यूजिक इंडस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट की पहली आवाज़ हैं कि जिनके आवाज़ में हमारे यहाँ रिकॉर्ड किया गया किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसानी आवाज़ को। ख़वातीन हज़रात, कुछ दिन गुजरे 1921 के बाद कि लोगों को ख्याल आया कि भाई इन चीज़ों को भी फिल्म के कालिब में ढाला जाए, क्योंकि 1921 के 10 साल बाद 1931 में हमारी फिल्म को आवाज़ मिल गई। आवाज़ मिल गई तो मुकालमा मिल गया, मुकालमा मिल गया तो यानी कि तहत मिल गया, और अगर तहत मिल गया तो तरन्नुम कितनी दूर की बात थी, तरन्नुम मिला तो समझिए गीत मिल गया, और हर फिल्म के अंदर दर्जनों गीत आने लगे। और 10 साल में एक फिल्म मेकर को यह ख्याल आया, और वो फिल्म मेकर कहाँ का रहने वाला था, आपके और मेरे शहर लाहौर का फिल्म मेकर था, जिसको यह ख्याल आया कि अमीर खुसरो की ये फोक बंदिश मैं अपनी आने वाली फिल्म में बतौर एक फिल्मी गीत के शामिल करूं। जो फिल्म वो बना रहे थे उसका नाम था हिम्मत। याद रखिए, हिम्मत लाहौर में बनने वाली एक फिल्म है जो कि 1941 की इब्तदाई महीनों में रिलीज की गई, और ये फिल्म बनाई है एक साहब ने जिनका नाम था RK शोरी। RK से होता है रूप कुमार शोरी। ये जो हम शाहनूर स्टूडियो करते हैं, इसका नाम यकीनन शाहनूर स्टूडियो है, और इसे अलॉट किया गया था मलिका तरन्नुम मादाम नूरजहां को और उनके शौहर साबिका जनाब शौकत हुसैन रिजवी साहब को। मगर इस पूरे स्टूडियो को बनाने वाले, सजाने वाले, यहाँ फिल्में बनाने वाले एक साहब थे जिनका नाम था RL शोरी। ये RL शोरी जो है रोशन लाल शोरी थे, जो कि रूप कुमार शोरी के वालिद थे, और ये असल में
पार्टीशन से पहले शोरी स्टूडियो था। और मेरे ख्याल में मेरा अभी भी दिल करता है कई दफ़ा कि इसका नाम जो है वो शोरी स्टूडियो हो जाए, कि जिन्होंने ये स्टूडियो बसाया और मुल्तान रोड पे उस वीराने के अंदर एक शहर निगारों को बसा दिया, हम ऐसे उनका नाम भूल गए कि जैसे वो कभी यहाँ रहते ही नहीं थे बाहर तो। और एक और मैं आपको बताऊँ कि जो रूप कुमार शोरी साहब हैं, उनकी एक और वजह शोहरत यह है कि अपने वक्त की बेइंतहा हसीन लाहौर की अदाकारा मीना शोरी के भी ये 5 शौहरों में से एक शौहर थे। मीना जी एक बड़ी हसीन खातून थी, तस्वीरों से आपको अंदाज़ा होगा बड़ी अपने ज़माने से आगे की खातून थी, और मामलाते दिल के अंदर भी बड़ी तेज़ रफ्तार थी। छोटी सी ज़िंदगी में 5-6 शादियाँ की और आखिर में बिल्कुल तन्हा थी। मेरी उनसे मुलाकात 1987 में हुई थी, जब वो बिल्कुल बिस्तर मर्ग पे थी एक कैंसर वार्ड ऑफ मेयो हॉस्पिटल में, जहां उनकी वफ़ात हो गई। और मेरे पास उनकी तस्वीर पड़ी, मैं कोशिश करूंगा कभी वो आखिरी तस्वीर निकाल के दिखाऊं आपको कि रहे नाम अल्लाह का, बाकी न हुस्न न जमाल न वजाहत न अमारत, किसी ने चीज़ नहीं रहना। बाहर तौर ख़वातीन हज़रात, फिल्म हिम्मत का हम जिक्र कर रहे थे। फिल्म हिम्मत में जो मौसीकार थे उनका नाम था पंडित गोविंद राम, जो पंजाब स्कूल ऑफ म्यूज़िक के एक बहुत बड़े मौसीकार थे, और वो जानते थे अच्छी तरह कि किस तरह मैंने किसी भी ट्यून को अपने अंदाज में बांधना और रचाना है। उनका इंतखाब इस गीत को गवाने के लिए एक बड़ी मशहूर मुगन्नी, उस वक्त इनका नाम था शमशाद बाई लोहारी मंडी वाली। हम सब उनको जानते हैं शमशाद बेगम के नाम से, और शमशाद बेगम का कौन दीवाना नहीं है। यहाँ मैं चाहूँगा कि छोटे छोटे क्लिप आप सोचें तो आपको पता चलेगा कि कितने उम्दा गाने शमशाद बेगम की आवाज़ में थे। और इससे पहले कि रगी की गुलकाराएँ छा जाती बॉलीवुड के ऊपर, ये शमशाद बेगम थी जो मलिका तरन्नुम नूरजहां के साथ साथ बहुत सी फिल्मों के गीत गाती थीं। एक दो गीत मेरे बड़े फेवरेट हैं, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। उफ, कमाल गाना है। इसके अलावा फिल्म मुग़ल आज़म में क्या क्या उम्दा वो एक कवाली है जो कि मधुबाला और उस फिल्म की जो विलेनेस है मुनव्वर सुल्ताना उनके दरमियान है। मधुबाला की आवाज़ का प्लेबैक जो है वो लता भाई मंगेशकर दे रही हैं, और निगार सुल्ताना की आवाज़ का प्लेबैक जो है वो शमशाद बेगम दे रही हैं, और नौशाद साहब की मौसीकी है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। गम दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे, गम दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे। तो फिल्म हिम्मत में ये गाना फिल्म के लिए सबसे पहले 1940 में रिकॉर्ड किया गया शमशाद बेगम की आवाज़ में, और उन्हें खूब अपनी भरपूर आवाज़ में से आपके सामने पेश किया। जहाँ तक ताल्लुक है कि इस फिल्म में कौन हीरोइंस थीं, तो मैं आपको बता दूं कि तीनों का ताल्लुक लाहौर से था या लाहौर के अतराफ के शहरों में था। हिम्मत के अंदर एक हीरोइन जो बहुत लीड में थी वो रागिनी बेगम थी। आपको शायद पता नहीं कि रागिनी कितनी बड़ी अदाकारा और हीरोइन थी। ये अपने वक्त की सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली खातून भी करार पाई हैं। इन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले कारदार साहब की फिल्म शाहजहां की हीरोइन बनने के लिए, इसमें मुमताज़ महल बनी थी, 1 लाख रुपया मुआवजा लिया, जो आप सोचिए कि आज से 77-78 साल पहले क्या माने रखता होगा। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इनका ताल्लुक भी उस शहर से था जिसका करीब मेरा आबाई गांव है, यानी कि ये गुजरांवाला की रहने वाली थी, और इनका असल नाम था शमशाद। शमशाद बेगम और हैं गाने वाली, इनका नाम था शमशाद उर्फ शादो, और इनकी आंखें इतनी हसीन थीं कि इनका लक़ब था आहू चश्म रागिनी, यानी कि वो रागिनी कि जिसकी आंखें गजालों से मिलती हैं, यानी कि हिरनी की आंख से मिलती हैं। आप लोगों ने शायद कभी हिरनी भी नहीं देखी होगी, खैर मेरे कहने पे देखिएगा और उसकी आंख देखिएगा वो क्या प्यारी आंख होती है। तो रागिनी की आंख भी वैसी थी। मेरी इनसे भी बहुत मुलाकात रही, और 2007 में जब इनका इंतकाल हुआ तो मैं शायद वो आखिरी इनका मदा या परस्तार था जिन्होंने इनको मरने से एक दिन पहले देखा। ये कहानी फिर सही। ख़वातीन हज़रात, इसके अलावा इसी फिल्म हिम्मत के अंदर मनोरमा थी। मनोरमा वही हैं जो बड़ी बड़ी आंखों वाली वैम्प बन गई बाद में बॉलीवुड में जाके, मगर असल में मनोरमा लाहौर की एक क्रिश्चियन फनकारा थी जो पहले फिल्मों में बतौर हीरोइन और साइड हीरोइन के आती थी। एक दफ़ा मनोरमा से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि जब सब सो जाते हैं तो मैं किसी ना किसी तरह टेलीविज़न पे लाहौर की कोई चीज़ लगा लेती हूँ, चैनल लगा लेती हूँ वगैरह वगैरह, कि शायद कोई गली, कोई चेहरा, कोई घर, कोई चुबारा मुझे शनासा नज़र आ जाए जहाँ मेरा बचपन और मेरी जवानी गुजरी है। खैर,
इन्हीं लोगों ने ले लीना जो पिक्चराइज हुआ फिल्म हिम्मत में, वो दोनों बीबियों पे नहीं हुआ। वो एक अलग अदाकारा थी जिनका नाम था राधा, और ये एक मुजरे की शक्ल में था। अक्सर जो आपको क्लिप्स अभी दिखाई जाएंगे वो हिम्मत के नहीं है, वो किसी और फिल्म के क्लिप लेकर उस पर ये गाना डब किया गया है, क्योंकि हिम्मत का प्रिंट नहीं मिलता, इसलिए कि ये लाहौर की फिल्म थी और लाहौर वालों ने न कभी पहले न तकसीम के बाद ये दिक्कत उठाई कि हम अपनी तारीख का कोई हिस्सा प्रिजर्व कर लें। ये वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसके अंदर 1924 के अंदर फिल्म कल्चर शुरू हुआ लाहौर में, मगर 1924 से लेकर 2025 तक 101 सालों में हम एक फिल्म आर्काइव यूनिट नहीं बना सके जहां पे लाहौर की फिल्में महफूज हों। खैर, इसका गम क्या कीजिए, आइए आगे चलते हैं। हम अब 1921 का जिक्र कर चुके, 41 का जिक्र कर चुके, आइए अब जरा सा आगे चलते हैं तो एक फिल्म हमें नजर आती है जिसका नाम है आबरू। आबरू 1943 में, यानी कि हिम्मत के 2 साल बाद बनी है, और ये बनी है हिंद पिक्चर्स के बैनर तले। हिंद पिक्चर्स के रूह रवां एक मुसलमान थे जिनका ताल्लुक लाहौर से था, एक ऐसे इलाके से था जहां अब आजम क्लॉथ मार्केट है, कपड़ों की दुकानें हैं, मंडी है वहां पे। उनका नाम था नज़ीर साहब। जी हाँ, ये वही नज़ीर साहब हैं जिन्होंने शादी की स्वर्ण लता से, और पाकिस्तान बनने के बाद ये कपल यहाँ पे आया और लारे और फेरे जैसी कामयाब फिल्में बनाई। उसके अलावा भी बहुत फिल्में हैं। मुझे यकीन है कि आपको इनके नाम से थोड़ी बहुत वाकफियत होगी, शायद आपको शक्ल भूल गई हो, मगर स्वर्ण लता को तो बहुत सारे लोग जानते होंगे। मैं भी उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ और मेरे दिल में उनकी बेपनाह इज्जत है। गज़ब की खातून थी। ख़वातीन हज़रात, जो फिल्म आबरू है, इसे भी नज़ीर साहब ने जब बनाने की कोशिश की तो उन्होंने पंडित गोविंद राम को इसके लिए मुझसे कार लिया, और पंडित गोविंद राम ने यह कहा कि इस दफ़ा मैंने इन्हीं लोगों ने ले लीना मर्दाना आवाज़ में रिकॉर्ड करके मर्द के ऊपर प्लेबैक करवाना है। फिल्म के हीरो का नाम लाला याकूब था। लाला याकूब एक बहुत बड़े कॉमिक अदाकार भी थे और एक विलन भी थे। अब तो उनको गुजरे हुए बहुत अरसा हो गया, मगर उनकी एक बात मैं आपको याद दिला दूं, ये लाला याकूब थे जिन्होंने शादी की थी खुर्शीद तान सैन वाली से, तानी बेगम। घटा घनघोर गोर, मोर मचावे शोर, मोरे सजन आजा आजा। जो जानकार हैं वो उनका दिल धड़क गया होगा जब मैंने ये गाने का जिक्र किया और जब खुर्शीद तानी का जिक्र किया। बाहर तौर ख़वातीन हुज़्ज़ात, फिल्म आबरू के अंदर इस गाने को गवाया भी पंडित गोविंद राम ने लाला याकूब से, और उन्हीं पे ये एक कॉमिक अंदाज में प्लेबैक करा के पिक्चराइज किया गया। और मुझे ये गीत बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इस गीत का एक अजीब व गरीब सा कॉमिक मजाक सा बनाया गया। लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, ख़वातीन हुज़्ज़ात, मगर जिस फिल्म से इस गीत को दवामी शोहरत मिलनी थी उसका नाम है पाकीज़ा। पाकीज़ा जो कि 1972 में रिलीज हुई और 1954 में जिसकी तैयारी शुरू हुई। 1952 में एक बहुत मशहूर आदमी हैं जो कि फिल्म राइटर भी थे और डायलॉग्स भी लिखते थे और बाद में हिदायतकार भी बनकर नाम था कमाल अमरोही। जी हाँ, ये सादाते अमरोहा में से थे, और सादाते अमरोहा में से आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। जॉन एलिया साहब को बहुत लोग प्यार करते हैं, ये उन्हीं के भाई हैं। उसके अलावा रईस अमरोही साहब, ये भी उन्हीं के भाई हैं। उन सब का ताल्लुक जो है अमरोहा से है। ख़वातीन हुज़्ज़ात, कमाल अमरोही साहब बहुत बड़े डायरेक्टर बने। 1952 में इन्होंने एक खातून से शादी की जिनका नाम था मीना कुमारी, और जिनका असल नाम था महजबी। और महजबी जैसी भी अदाकारा शायद ही कभी हमारे सिनेमा को नसीब हुई हो। सबसे पहले इन्होंने शादी के बाद एक फिल्म बनाई जिसका नाम था दायरे, जो तकरीबन इन्हीं की प्यार की कहानी थी मगर कामयाब ना हुई। फिर उन्होंने ये ठानी कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो कि मेरा नाम और मेरी प्यारी बीवी का नाम अमर कर देगी। तो उन्होंने फिर पाकीज़ा की कहानी लिखनी शुरू की। ये एक ऐसी तवाइफ की कहानी है जो उसका डबल रोल है। पहले उसका नाम होता है नरगिस और उसके बाद उसका नाम होता है साहिब जान, और फिर उसका नाम बदल के पाकीज़ा रख दिया जाता है। आप सब लोग इस फिल्म को देख चुके हैं। इस फिल्म के लिए जो मौसीकार चुने गए उनका नाम मास्टर गुलाम मोहम्मद साहब था। कमाल आदमी थे अपने ज़माने के, और इनका शोहरा उस ज़माने में बॉम्बे में इसलिए था कि एक फिल्म थी मिर्ज़ा गालिब जिसके अंदर भारत भूषण और उनके साथ सुरैया थीं, और उसमें गालिब की गज़लियात को फिल्मी गीत के कालिब में कमाल उम्दगी के साथ ढाला गया था। और ये सेहरा मास्टर गुलाम मोहम्मद को जानता जाता है, जिसके लिए इनको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया। तो जाहिर है कि पाकीज़ा के लिए इन्होंने ख़ास तौर पे कमाल अमरोही साहब ने इनको बुक कर लिया और गीत उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। फिल्म की शूटिंग 1956 में शुरू हुई, और इस फिल्म को सबसे पहले 56 के मुताबिक ब्लैक एंड वाइट बनाया गया। ख़वातीन हुज़्ज़ात, ब्लैक एंड वाइट, उस पर कलर फिल्मों का रिवाज नहीं था, सिनेमास्कोप फिल्मों का रिवाज नहीं था। जो गीत बहुत शुरू में रिकॉर्ड किया गया
वो यही था, इन्हीं लोगों ने ले लीना, ब्लैक एंड वाइट गीत था। हीरोइन भी मीना कुमारी थी, मगर मीना कुमारी जिनकी उम्र उस वक्त बहुत छोटी थी, कोई बीमारी नहीं थी, जिस्म फरबई माहिल नहीं था और ना ही चेहरा भारी हो गया था वर्म से। ये देखिए, ब्लैक एंड वाइट इन्हीं लोगों ने ले लीना आपने शायद पहले ना देखा हो, क्योंकि बाद में इस पूरी फिल्म को रंगीन करके बनाया गया और उसके जो तमाम शूट हो चुके थे इससे ब्लैक एंड वाइट, उनको डब्बों में बंद कर दिया गया। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि इस फिल्म के DOP यानी कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी एक बहुत मशहूर जर्मन थे जिनका नाम था जोसेफ वर्शिंग। और जोसेफ वर्शिंग म्यूनिख में पैदा हुए थे, मगर उन्होंने अपना तमाम काम जो है वो बॉम्बे में किया और बॉम्बे टॉकीज के साथ उन्होंने बहुत देर तक काम किया। इनकी भी इब्तदा बर सगीर में लाहौर की एक फिल्म से हुई जिसका नाम था द लाइट ऑफ एशिया। लाहौर कोई मजाक नहीं है, सिर्फ ये कह देना जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जम्मिया नहीं, और तुसी जम्मे हो, तुसी लाहौर के मतलब कुछ जानते ही नहीं हो। तकना की होता है? जब तक आप किसी शहर के बारे में जाने ना, उसकी तारीख के बारे में ना जाने, उसके रहने वालों की तारीखी अहमियत को ना जाने, निरे खाबे खा के लॉरी बनंदा कोई फायदा नहीं है। बाहर तो ख़वातीन हज़रात, मैं इस फिल्म का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये फिल्म जिसकी तैयारी 1954 में हुई और 18 साल बाद 1972 में ये रिलीज़ हुई, तो यही गीत जो भी आपने ब्लैक एंड वाइट देखा है, ये इस फिल्म का पहला गीत था जो कि रंगीन था और जिसे किस उम्दगी के साथ लता बाई मंगेशकर ने गाया है कि अमर हो गया ये गीत। वैसे तो लता जी जिस चीज़ को गा देती थी वो अमर ही हो जाती थी। खुदा की कुदरत का एक मोजज़ा है लता बाई और उनकी बहन आशा भोसले। अल्लाह ताला ने किसे वखरे वेले बह के आप मुहब्बत नाल उन्होंने गले, उन्होंने दिल, जहन और फेफड़े बनाए ने, जैसा कि मलिका तरन्नुम मादाम नूरजहां के बनाए हैं। और हमारी तरफ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तख्लीक का मोजज़ा हैं उस खालिक के कुल के। ख़वातीन हज़रात, ये गीत जब दोबारा पिक्चराइज किया गया तो उसकी शूटिंग के अंदर वो तमाम एहतमाम किया गया जो पहले ना हो सका। बड़े बड़े सेट्स थे, बहुत उम्दा कपड़े थे, जेवरात और कमाल अदाकारी और एक पुख्तगी जो कि आपको मीना कुमारी की हर अदा में नज़र आती है। ख़वातीन हज़रात, मगर इस फिल्म को किसी की नज़र लग गई। इस फिल्म की तैयारी के अंदर 18 साल लग गए, ज़माना बदल गया। मैं आपको भी बता रहा था कि फिल्म का म्यूज़िक उन्हें दिया था मास्टर ग़ुलाम मोहम्मद ने। इस दौरान मास्टर ग़ुलाम मोहम्मद फौत हो गए। इस दौरान जोसेफ वर्शिंग का मैंने जिक्र किया जो कि इसके DOP थे, वो फौत हो गए, दुनिया से चले गए। और इस दौरान इस फिल्म की हीरोइन की उम्र 18 साल बढ़ गई। इस फिल्म के हिदायतकार और हीरोइन के दरमियान जो शादी का बंधन था वो अलहदगी में कन्वर्ट हो गया और बेइंतहा आपस में एक ख़ास किस्म की नाचाकी और नफ़रत का रिश्ता कायम हो गया। जहाँ तक मीना कुमारी का ताल्लुक़ है, वो शराब की रस्सियाँ हो गईं, दुखों की मारी हो गईं और हमेशा टूटे हुए दिल को सहारा देती रहीं। इस हद तक बात बढ़ी कि उनका पूरा जिगर सुकड़ गया, जिसको एल्कोहलिक सिरोसिस कहा जाता है। वो सेट के ऊपर भी खून की उल्टियाँ करती थीं, चेहरा शराब को पीते पीते सूज जाता था और अडीमा हो जाता था क्योंकि जिगर का हेपेटिक फेलियर इनको हो गया। अब जाहिर है कि जिगर का फेलियर हेपेटिक फेलियर होगा, मेरी बात को बुरा ना बनाइए, लेकिन मैं साथ साथ तर्जुमा करता जा रहा हूँ। ख़वातीन हज़रात, फिर बिलाखिर 1968 में उनको मनाया गया कि आप दोबारा सेट पे आएँ, इस फिल्म को मुकम्मल करें ताकि जो मेहनत और पैसा इस फिल्म पे लगाए वो ज़ाया ना जाए। वो भी समझदार खातून थी, उनको पता था कि दिस इज़ गोइंग टू बी माई स्वॉन सॉन्ग, यानी कि वो आखिरी शाहकार जो मरने से पहले मैं अपने परस्तारों को दे के जा सकूँ। इन्होंने ये फिल्म मुकम्मल की, पूरी फिल्म रंगीन मुकम्मल हुई। जिस आदमी को इस फिल्म का पहले हीरो चुना गया था, यानी कि अशोक कुमार साहब को, उनको फिर बाद में हीरो का चचा शहाबुद्दीन बना दिया गया और हीरो के लिए मुख्तलिफ नाम कंसिडर करने के बाद राजकुमार साहब को सलीम का किरदार दिया गया, जो कि इस फिल्म के अंदर पाकीज़ा से निकाह करते हैं। ख़वातीन हज़रात, एक एक गीत कमाल है, एक एक गीत कमाल है और आज ये फिल्म क्लासिक्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में शुमार किए जाते हैं और मेरे ख्याल में ये एक रहती दुनिया तक लोगों को पसंद रहेंगे। चलते चलते खाड़े रहियो, और जो आखिरी गीत है इस फिल्म का वो मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा पसंद है। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे।
میں جب اللہ تعالیٰ سے بے انتہا دعا مانگ کے اٹھتا ہوں نا تو ایک فلمی گیت میرے لبوں پہ آ جاتا ہے. میں اللہ کو کہتا ہوں آج ہم اپنی دعاؤں کا اثر دیکھیں گے, تیر نظر دیکھیں گے, زخم جگر دیکھیں گے. پروردگار سے زیادہ کوئی تیر نظر دیکھ سکتا ہے, کوئی زخم جگر دیکھ سکتا ہے, اور اس کا مرہم صرف اس کے کرم کے خزانوں میں موجود ہے. اس فلم کے گانے کے دوران اتنی بیمار تھیں مینا کماری کے کھڑی نہیں ہو سکتی تھیں. اس لیے آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ اس فلم کے اس کلائمیکس کے گیت پہ جو رقص کیا گیا ہے اور جو دوپٹہ سامنے ڈال کے سفید رنگ کا رقص کیا گیا ہے وہ مینا کماری نہیں ہے, وہ ایک اور اداکارہ ہیں جو کہ بہت اچھی کتھک سٹار تھیں اور جن کا نام تھا پدما کھنہ. باہر طور خواتین حضرات 1972 کی فروری میں یہ فلم ریلیز ہوئی اور مارچ میں 1972 کے اندر مینا کماری نے آخری ہچکی لی اور اس دنیا سے چلی گئیں. اس وقت ان کی فلم پاکیزہ شہرت کے جھنڈے گاڑ رہی تھی, مقبولیت کے اوج پہ تھی, مگر ان کی وفات کے بعد ایک نئے ولولے کے ساتھ ان سے محبت کرنے والوں نے اس گیت اور اس فلم کو دیکھنا اور سراہنا شروع کیا اور تقریباً 52 ہفتے تک مسلسل مختلف سینماؤں کے اندر پورے انڈیا میں یہ فلم چلتی رہی اور ہر شو ہاؤس فل تھا. آج بھی اس فلم کو دیکھنے والے کروڑوں پرستار ہیں. اس فلم کے بارے میں 2-3 باتیں اور بھی کرنا چاہتا ہوں, مگر کبھی اس فلم کا ذکر کریں گے. آج ہم صرف اس کے گیت کی کہانی سنا رہے ہیں. خواتین حضرات, اس فلم کے اندر ایک چیز آپ ضرور دیکھیے کہ اس کا ژانرا مسلم سوشل ہے, یعنی کہ یہ مسلمانوں کی تہذیب, ان کے گھرانے وہ کوٹھے پہ ہوں یا پھر اشرافیہ کے اندر ہوں, اس کی کہانی ہے. خواتین حضرات, ایک بات اور ہے کہ تقریباً 1973 کے اندر جب لاہور میں امرتسر کی دوردرشن کی نشریات یعنی کہ انڈین ٹیلی ویژن پہلی بار نظر آنا شروع ہوا تو ایک کوہرام مچا ہوا تھا لاہور میں. میری چھوٹی سی عمر تھی, میں اسکول جاتا تھا, لیکن مجھے پتا تھا کہ لاہور کے ہر گھر میں جس میں ٹی وی موجود ہے لوگ ایک نیا اینٹینا لے کے لگا رہے تھے. وہ اینٹینا پہلے سے لمبا تھا, اس کے ساتھ پراتیں, تھالیاں, ایلومینیم کی مختلف چیزیں لگائی جاتی تھیں کہ یہ انڈیا کیچ کریں گی. اور جو پہلی فلم دوردرشن والوں نے پاکستان کے شہر لاہور کو دکھانی مناسب سمجھی وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ پاکیزہ تھی. اور مجھے یاد ہے کہ انتہائی ڈسٹربنس کے ساتھ کٹی کبھی کبھی نظر آتا تھا, سین کبھی نہیں نظر آتا تھا, لیکن پوری رات جاگ کے ہم نے یہ 2.5 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی فلم دوردرشن پہ دیکھی. اور اس زمانے کے اندر رنگین نظر نہیں آئی, یہ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ نظر آئی تھی, کیونکہ ابھی تک ٹیلی ویژن پاکستان میں رنگین نہیں ہوا تھا, جو بعد میں ہوا. باہر طور یہ ایک یاد ہے لاہوریوں کی زندگی کی جو ایک بڑی عمدہ یاد ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈیا نظر آنا شروع ہو گیا, اور پھر تو انڈیا ایسا آیا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم نے بھگایا اسے اور پتہ نہیں اپنے نقصان کر لیا. سینما ہال خالی پڑے ہیں, پرانی فلموں کو ہم دوبارہ عید پہ لگاتے ہیں, ناکام فلموں کو دوبارہ لگاتے ہیں, وہی فلم ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ہے مفت, اور وہی فلم 1500 کی ٹکٹ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے ایک سینما کے اندر. مجھے بتائیے یہ کہاں کا فائدہ ہوا اور کہاں کا نقصان ہوا؟ اپنی قومیت کو پہچاننے کے لیے آپ اور بہت کچھ کر سکتے ہیں, اس قسم کے جو سمبولک قسم کے جیسچر ہیں یہ آپ ہی کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. خواتین حضرات, پاکیزہ کا بہت ذکر کیا جا سکتا ہے, میں نے بہت ساری تصاویر بھی آپ کو دکھائی ہیں مینا کماری صاحبہ کی. مجھے ان کی زندگی, ان کی ایکٹنگ, ان کے تمام پرسونا سے ایک خصوصی دلچسپی ہے, اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ان کا بھی تعلق اگر آپ دیکھیں تو وہ لاہور سے تھا. ان کے والد اور ان کی والدہ اقبال بیگم شروع میں شادی کے بعد لاہور میں رہتے تھے. ان کے والد بعد میں حکیم شکیم بن گئے اور ان کی والدہ اسٹیج پہ ڈانس کرتی تھیں. ان کا نام اقبال بیگم تھا, والد کا نام علی بخش تھا, مگر یہ کہانی بھی کسی اور وقت صحیح. خواتین حضرات, اس فلم کی اور اس گیت کی کہانی مگر یہاں ختم نہیں ہوتی. 1990 میں ایک فلم بنی نیا انداز, اور اس فلم کے اندر اسی گیت کو جو لتا بائی نے گایا ہوا ہے اور ماسٹر غلام محمد کی موسیقی ہے دوبارہ نہیں گوایا گیا, ایک نئے انداز میں پکچرائز کیا گیا اداکارہ ریکھا پہ. اپنے اپنے پسند کی بات ہے, 1990 میں جب اس کو پکچرائز کیا گیا تو ریکھا کو باقاعدہ ایک اسٹریٹ سنگر جن کے لیے گیت لکھا گیا تھا, یہ جو گاتی تھیں, اس طرح کا ایک سین بنایا گیا, اور ریکھا نے اپنے انداز میں ایک فوک اسٹریٹ سنگر کی طرح اس گیت کو پکچرائز کرایا جس میں لٹکے جھٹکے بہت زیادہ تھے. انہی لوگوں نے لے لینا دوپٹہ میرا, انہی لوگوں نے لے لینا دوپٹہ میرا. اور وہ جو ادائیگی کتھک کے ٹکڑوں کے ساتھ مینا کماری نے کی تھی وہ نہیں تھی. ہم لوگوں کو یہ گیت اور مینا کماری لازم و ملزوم نظر آتے ہیں, اس لیے میرے خیال میں بہت کم لوگوں نے ریکھا کو سراہا یہ گیت پکچرائز کرتے ہوئے, اور یہ فلم بھی انتہائی ناکام ہوئی.
جو کہ 1990 میں ریلیز ہو کے چند دنوں میں فلاپ ہو گئی، اور یہ گیت بھی اس کو یہ سہارا نہیں دے سکا۔ خواتین حضرات، بتانے کی بات صرف یہ ہے کہ میں نے اس پورے گیت کی کہانی میں آپ کو یہ بتانا چاہا ہے کہ کس طرح میرے شہر لاہور کے لوگوں نے اس فلم کو، اس گیت کو، اس کے فلمی قالب کو سب سے پہلے اپنایا، اور پھر یہ میگنم اوپس آف کمال امروہیز پاکیزہ بنا۔ اے ہندی لاہوری ہون دا ثبوت دینا، اے ہندی وطنیت دا ثبوت دینا، اے ہندی تاریخ کڑ کے اے دسنا کہ جڑا لاہور نہیں جاندا وہ آپ نہیں جاندا۔ سمجھ آئیے آپ کو میری بات کی؟ ہمارے ساتھ رکھیے، کسی اور پروگرام میں ملیں گے، کسی اور ایپیسوڈ میں ملیں گے۔